Welcome to the DSA online education. This is Neetu ma'am from DSA and I am your English mentor. I'll be teaching you English and specially designed for NDA. I'll be preparing you for NDA English crash course. I am very proud to launch this NDA crash course 2020. Now in English, I'll be teaching you the rules plus the approach, how to apply those rules in the question paper. Now, as we all know, English is the most important part of NDA exam. Now, for that, we have a specially designed crash course of 70 days for NDA. Now, students, welcome to the specially designed NDA crash course 2020. And I feel proud to welcome you all on this educational tutorial of Defense Services Academy. Now, something about my subject. My subject, English. I'll be teaching you English and that also the objective type English that will come in the NDA exam. First of all, the students who are joining us for the very first time, I just want to say something to you about the NDA English. बेटा NDA English बहुत अलग नहीं होती, बहुत difficult नहीं होती, but still sometimes very brilliant students, very intelligent students, sometimes they fail in English. They just don't know the approach to apply the rules of English. So I'll teach you the rules and the approach to solve the NDA English exam because there needs some tricks to solve the paper. Now NDA English जरूरी क्यों है बेटा? NDA में English का बहुत important part है. You need a minimum qualifying score in NDA English, first of all. Secondly, you need to score in English because you want a merit. गैट के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही इंग्लिश का है, तो आपको इंग्लिश में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है. एंड इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं. नाउ द इंग्लिश एग्जाम ऑफ एनडीए इज ऑफ 200 मार्क्स. ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. So you have to perform well in English. But those students who feel scared of English, no need to fear because Neetu ma'am is here. So this is Neetu ma'am. Welcome you once again on the educational tutorial of Defense Services Academy. Now, how we will do this revision, how we will make you perfect in English in 70 days. Now we are having a line of action. Line of action? Yes, line of action. Let me explain. Now this is a line of action. Line of action means the plan. The plan, the step-by-step plan, what we will do and how we will do and when we will do. Now my line of action is, the first thing we will do the grammar rules. The grammar rules, the basic rules of grammar, and that also with the examples and that also with the practice exercise, so that the overall thorough revision is done of the grammar. The students who have prepared for NDA, या the students who are new to our channel, no need to worry. जो नए हैं वो रिवीजन करेंगे, जो अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए भी I have designed the line of action in this way कि वो पहली बार में ही पढ़ के उनको सब चीज समझ में आ जाएगी. Okay, the second is spotting the errors revision. Spotting the errors revision means जो आपने ये रूल्स किए हैं, इन रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे? What will be the techniques? What will be the tricks? उन सब ट्रिक्स का एप्लीकेशन बेस्ड आपको जो भी प्रोसेस वाइज प्रैक्टिस होगी वो हम हमारे सेकेंड प्लान में करेंगे. द थर्ड सेगमेंट इज सिनोनिम्स. नाउ व्हाट आर सिनोनिम्स? सिनोनिम्स मींस सेम मीनिंग वर्ड्स. The opposite is antonyms. Antonyms are opposite words. So this synonyms and antonyms will expand your vocabulary so that
you have a developed vocabulary and an approach to solve the paper. These are the important segments in NDA English. Next, we will move to idioms and phrases. Idioms and phrases, yes, कहावतें और मुहावरे. Next is sentence improvement, and the last is sentence completion. All these segments we will cover in our 70 days plan, the thorough revision, the deep revision. बच्चा जो ये सब आप सॉल्व तभी कर पाओगे when you will be having a detailed and conceptual knowledge of grammar. Now, detail and conceptual knowledge of grammar के लिए you have to study the grammar rules. But just study करना काफी नहीं है. You must know the application of that rule. And for that application rule, हम ये practice exercise के साथ साथ after completing this line of action, we will solve 10 years NDA papers, and that also live here, so that you will be having confidence to solve each and every question, each and every segment confidently. And I assure you all that each one of you will be able to crack the NDA exam with flying colors. And I know you all will make us feel proud. Now, I'll tell you how the questions come in the NDA exam. ना एनडीए का जो पेपर होता है बेटा, वो एनडीए इंग्लिश का पेपर या कोई भी एनडीए का सेगमेंट सब्जेक्ट हो, उसके सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यू विल बी गेटिंग 4 ऑप्शन. That is, you are having MCQ type questions. Now, from these 4 options, you have to choose the best appropriate option. अब बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना इजी नहीं है. द वेरी फर्स्ट स्टेप टू चूज द बेस्ट ऑप्शन इज टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस. दैट विल मेक योर वर्क इजी. उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस विल बी कनेक्टेड टू द question, and the last option D option will be no improvement. तो सबसे पहला टास्क ये है कि उन 4 ऑप्शंस में से 2 रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो. अब वो एलिमिनेशन भी तब आएगा when you will be having a detail and a conceptual knowledge of grammar. उसके बाद जब आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, नाउ रिमेनिंग 2 में से यू हैव टू चूज द बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. सो इंग्लिश इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इंग्लिश इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, एंड आई मेक यू श्योर दैट यू ऑल विल score good marks in NDA English, because no need to fear when Neetu ma'am is here. So I'll be teaching you English in a very interesting way. And I promise you one thing, you will never forget the grammar and the English I'm going to teach you in 70 days. So, my dear students, welcome you again to the line of action of English Crash Course 2020, NDA English Crash Course 2020. So, the very first task is to do the rules. The grammar rules. Now, I have designed my course in this way that by revising, by attempting the rules task, you will be able to solve the 4 most important segments of NDA English exam. सिर्फ रूल्स पढ़कर ही आप 4 जो सेगमेंट्स हैं एनडीए इंग्लिश के, आप उसको कर सकते हैं. कौन कौन से टास्क हैं जो आप कर सकते हैं? द वेरी फर्स्ट इज स्पॉटिंग द एरर्स. स्पॉटिंग द एरर्स इज अ टाइप ऑफ सेगमेंट विच कम्स इन द एनडीए एग्जाम. इन दिस सेगमेंट यू विल गेट सम sentences, and each sentence is divided into 4 parts. You have to check whether the sentence is grammatically correct or not. अब उस पूरे सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, A, B, C, and the D option is no error. You have to check each and every part, the usage of parts of speech, the function
of the grammar rules, the function of the parts of speech, whether they have used in the correct way or not. तो अगर आपको लगता है A, B, C जिस किसी पार्ट में भी एरर है, यू हैव टू पॉइंट आउट दैट पार्ट इन द ऑप्शन. और अगर आपको लगता है कि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो दैट विल बी नो इम्प्रूवमेंट, डी ऑप्शन. अब बेटा ये होगा कैसे? ये ऐसे होगा व्हेन यू विल बी हैविंग डिटेल एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ ग्रामर रूल्स. ओके, इन दिस you just have to spot the error part. Now the next is sentence improvement. In this segment, you will be getting one sentence. In that sentence, there will be one word, one phrase or one part highlighted. And for that highlighted part, word or phrase, you will be getting 4 options underneath the question. Now you have to check whether that highlighted part is correct in the sentence, or you can supply some of the best option from the 4 options given underneath that. If any one of the option is best appropriate for the question, you have to supply that. If you feel that the sentence is grammatically correct, your option will be no improvement. So you have to choose the best option conveying the part, conveying the meaning, conveying the relation of that highlighted part in sentence improvement. The third segment of NDA exam is sentence completion. That means fill in the blanks. That means fillers. Now these fill in the blanks or sentence completion again in the form of a sentence with a blank, and there will be 4 options for the blank given in the sentence. You have to choose the best appropriate option. Okay, now the next is sequence of words or sentences. Sequence of words mean you will get a jumbled sentence, a jumbled words with jumbled order in a sentence. Now you have to make it in a proper sequence. और वो कब होगा? जब आपको ग्रामर के रूल्स पता है, नाउन कहाँ आता है, वर्ब कहाँ आता है, एडजेक्टिव कहाँ होता है, प्रोनाउन कहाँ होता है, सेंटेंस में इनकी पोजीशन क्या होती है, ये तभी आप कर पाओगे जब आपको ग्रामर के रूल्स की नॉलेज है. उसी का एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है sequencing of sentences. In this segment, you will be getting some jumbled sentences. You have to arrange those sentences in a proper sequence as per the actions performed in that particular scene. तो ये तभी होगा when you will be having a detailed and conceptual knowledge of English grammar. Again, no need to fear when Neetu ma'am is here. So you will be able to solve these 4 segments with the help of grammar rules. Now let's move forward to the grammar rules. Now the first important topic, the most important topic I must say in English grammar is subject verb agreement. Subject verb agreement, ये कौन सा agreement है? ये तो हमने सुना ही नहीं है. No, this is the most important part of English grammar. Subject verb agreement. अगर आपने ये समझ लिया तो you are done with the half of the struggle. आधी लड़ाई जीत ली. आधी लड़ाई जीतने के लिए subject verb agreement समझना बहुत जरूरी है. अब subject verb agreement कैसे समझेंगे? Let's start. Now subject verb agreement होता क्या है? सुनिए. I have written one sentence on the board. Rahul plays in the garden. Now यहाँ पर pay attention कि subject क्या है, verb क्या है और किस subject के साथ क्या verb लगेगा. Let's check it out. Now Rahul is subject. Now why Rahul is subject? Because कोई भी sentence हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. सब्जेक्ट कौन होता है बेटा? सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, सब्जेक्ट जिस पे वर्ब डिपेंड है. काम किसने किया? सब्जेक्ट ने किया. ओके, नाउ अब ये सब्जेक्ट
या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी आइदर नाउन और प्रोनाउन, ये याद रखना। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज वर्ब। दिस इज वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा? वर्ब का V1 प्लस S फॉर्म है। V1 प्लस S। अब V1 प्रेजेंट टेंस में लगता है, उसके साथ S क्यों लगा? उसके साथ S इसलिए लगा बिकॉज जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगता है। V1 plus S, V1 plus ES. Okay, now see, this is preposition. Now this is object. This is object. तो सबसे पहले बच्चा ये समझना जरूरी है सेंटेंस में हर एक पार्ट की स्पीच की जगह क्या है। सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन या उसके बाद ऑब्जेक्ट। द बेसिक फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में S लगता है। दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में S लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आना चाहिए। अब नाउ दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर भी या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो टू थिंग्स कीप इन माइंड, सेंटेंस विल स्टार्ट विथ सब्जेक्ट ऑलवेज। सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन क्यों? बिकॉज किसी भी इंसान का, चीज का, जगह का नाम नाउन है। अब प्रोनाउन क्यों? बिकॉज नाउन के लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज होती है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन and noun and pronoun are always used at the place of subject. वैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पर भी सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही यूज होंगे। तो whenever you are getting a sentence, you must check कि सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन ही यूज होना चाहिए ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो उस पे हमने आज एक अभी रूल सीखा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 में S लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में V1 में S लगता है। One more thing. Now see, present tense में singular subject के साथ V1 plus S और ES, plural subject में V1. Now, अगर मैं यहाँ लिखूं boys play in the garden. Is this sentence correct? As per this rule? Yeah. See, plural subject V1 and this is object. Subject, verb, object. See, हमारा basic formula subject, verb, object. Clear? Now plural subject में V1 और object garden. Now one more. They play in the garden. Now, is this sentence correct? Is this sentence correct? Yes. Let me check. Now, they is plural. This V1 and this is object. This is subject.
सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, V1 लगा है, बॉयज की जगह अगर मैंने दे भी लगाया है तो भी वो सही है। नाउ वन मोर, he goes to school. Is this sentence correct? He goes to school. Now see, singular subject, singular subject में V1 के साथ S या ES लगता है, C, तो यहाँ GO go के साथ ES लगा है, because the words ending with O take ES in the present tense to make the verb singular with the singular subject. So I hope you have understood this basic subject verb agreement. ये तो थी present tense की बात। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, नाउ सी, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है हैज प्लस V3 और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस V3। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड, कहाँ हैज लगेगा कहाँ हैव लगेगा। सी, he has gone to the market, singular subject has plus V3। Now see, subject, verb, object, कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद वर्ब आता है, वर्ब का फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है, और यही कनेक्शन को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दैट मीन्स योर वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। नाउ वन मोर सेंटेंस टू चेक यू। Now I have done my work. Is this sentence correct? हमने यहाँ लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, बट मैं आई सिंगुलर स्टिल आई हैव यूज्ड हैव। व्हाई? यहाँ तो हैव प्लूरल के साथ लिखा है मैम ने, फिर यहाँ हैव क्यों लगा लिया? बिकॉज बच्चा आई, यू और वी इनके साथ हमेशा और हमेशा हैव प्लस V3 लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हमेशा याद रखना। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ आई विल ट्राई टू टीच यू द रूल्स रिगार्डिंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रामर। लेट्स स्टार्ट। नाउ सी द फर्स्ट रूल, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। हमने अभी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन प्लूरल। नाउ कैसे? सी, हरि एंड राम, हरि एंड राम दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज हियर, क्या दो लोग प्लूरल हो रहे हैं? यस, एक और दो, एक से ज्यादा प्लूरल। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए वर्ब कौन सा चाहिए? प्लूरल। इस किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। अगर यहां होता राम इज हियर तो क्या ये करेक्ट था? यस, ये करेक्ट है, बिकॉज दिस इज सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन अभी चेक आउट द सेंटेंस, यहां राम के साथ हरि भी है, तो जब राम के साथ हरि है दैट मीन्स राम अकेला नहीं है, तो राम अकेला नहीं है मीन्स दो लोग हैं, दो लोगों के लिए इज नहीं लगता है, दो लोगों के लिए आर लगेगा, दो लोगों के लिए आर लगेगा, एक के लिए इस लगता है। द बेसिक रूल। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल। If two singular nouns refer to the same person or thing, the verb must be singular. अब ये रूल कैसे हुआ? ये रूल कैसे हुआ? अगर आप एक ही सेंटेंस में एक ही इंसान की दो क्वालिटीज बता रहे हैं, या एक ही इंसान की दो डेजिग्नेशन बता रहे हैं, या एक ही इंसान के बारे में दो से ज्यादा क्वालिटीज बता रहे हैं, तो वो क्वालिटीज काउंट नहीं होंगी, बिकॉज वो किसके लिए हैं?
वो एक ही इंसान के लिए हैं। तो सब्जेक्ट कितना हुआ बच्चा? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। सेम थिंग व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स मीन्स अगर दो पोजीशन, दो क्वालिटीज, अब क्वालिटीज भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, तो अगर दो क्वालिटी, दो पोजीशन, दो अलग अलग डेजिग्नेशन एक ही पर्सन के लिए यूज हो रही हैं, तो वो अलग नहीं माने जाएंगे, पर्सन तो एक ही है, तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। और वो कैसे होगा? लेट्स चेक आउट। नाउ सी द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। सी हियर द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। कितने लोग हैं बेटा? सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दो लोग हैं। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। सेंटेंस करेक्ट है, आपको लग रहा होगा। इज द सेंटेंस करेक्ट? रीड द सेंटेंस वंस अगेन। रीड द सेंटेंस वंस अगेन। कितने लोग आ रहे हैं? जैसे हमने इससे पहले वाले सेंटेंस में किया, हरी एंड राम आर हियर, तो वो भी तो वैसे ही है, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया है, इफ टू नाउन्स, प्रिंसिपल भी नाउन है, सेक्रेटरी भी नाउन है, नेम ऑफ अ पोजीशन, नेम ऑफ अ डेजिग्नेशन, तो ये दोनों एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है कि अलग अलग। नाउ पे अटेंशन द ट्रिक। अगर इफ यू गेट स्टक इन सम ऑफ दीज टाइप ऑफ सेंटेंस, आई एम टेलिंग यू वन इंपॉर्टेंट ट्रिक टू क्रॉस चेक। आई एम टेलिंग यू वन ट्रिक टू अप्लाई ऑन दीज टाइप ऑफ सेंटेंस। ट्रिक क्या है बेटा? Check out this. The definite article. The definite article, the secretary means the secretary, एक secretary. अब principal के साथ the नहीं लगा, means this the is working for this principal position also. ये the definite article इन दोनों के लिए ही वर्क कर रहा है, मतलब दोनों एक हैं, ये याद रखना। अब अगर ये दोनों एक ही पर्सन की पोजीशंस हैं, तो सब्जेक्ट कितना हुआ? सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा ही नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा। माइंड दिस। अगर इसकी जगह होता, नाउ चेक आउट द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। अब कितने लोग हैं? चेक आउट द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल। यहां पर एक ही बार द लगा है, दैट मीन्स वन सब्जेक्ट। यहां दो बार लगा है, दैट मीन्स टू डिफरेंट पर्सन्स, टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, टू डिफरेंट नाउन्स आर देयर। बिकॉज आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है, ये हमें बेसिक पता है। तो दिस नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, बट ये भी नाउन है, इससे पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगा? बिकॉज ये नाउन इसी के लिए है, ये नाउन इसके साथ ज्वाइन है। तो whenever this type of sentence come कि when two singular nouns refer to a same person, that will be taken as a singular subject and singular subject will take singular verb. And this to check, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, I have given you the trick. अगर द एक बार लगा है मतलब एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर द दोनों बार लगा है मतलब दो सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर ये सेंटेंस होता तो यहां आता आर कमिंग। Got the difference between the two? See, here the same person is secretary as well as principal. इसमें कैसे पता चल रहा है? द एक में लगा है, यहाँ दोनों अलग अलग हैं, सेक्रेटरी अलग है, प्रिंसिपल अलग है। यहाँ जो सेक्रेटरी है वो ही प्रिंसिपल है, और वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि द एक ही बार लगा है। तो आई होप दिस रूल इज क्लियर। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल। नाउ सी, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रीसीडेड, what do you mean by this word preceded? Preceded means पहले, preceded means पहले। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले ईच और एवरी लगा हो, तो वो सब्जेक्ट
सिंगुलर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? ईच या एवरी मीन्स हर एक। एवरी और ऑल से कंफ्यूज मत होना। एवरी मतलब हर एक, ऑल मतलब सब। तो ईच और एवरी के बाद हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन ही आना चाहिए, ये याद रखिएगा। ऑल के बाद प्लूरल आता है। ऑल बॉयज आर प्रेजेंट, ऑल बॉय नहीं, एवरी बॉय इज प्रेजेंट। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बोल रही हूं ऑल बॉयज आर प्रेजेंट, सब लड़के प्रेजेंट हैं। अभी आप मेंटली प्रेजेंट हैं, सो तो नहीं गए कहीं, आपके लिए था ये। ऑल बॉयज आर प्रेजेंट, दैट मीन्स सब लड़के प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूं एवरी बॉय मतलब हर एक, मुंह से क्या निकल रहा है? एक मीन्स सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। सी दिस इज द थिंग। तो अगर सेंटेंस से पहले ईच या एवरी है, सेंटेंस से पहले मीन्स सिंगुलर नाउन से पहले। सी ना, यहां पे मैं आपको दो चीजें बता रही हूं। जब भी ईच या एवरी यूज होगा, जब भी ईच या एवरी यूज होगा, उसके बाद हमेशा और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही चाहिए। ईच गर्ल, ईच बॉय, दैट मीन्स ईच गर्ल, एवरी बॉय, हर एक लड़की, हर एक लड़का। ऑल बॉयज, ऑल गर्ल्स, तो एवरी बॉय और ईच गर्ल। सी यही रूल है कि अगर ईच लग रहा है या एवरी लग रहा है, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। तो यहां तक तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, यहां तक सेंटेंस करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड गर्ल, तो बॉय सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, दैट मीन्स एवरी के बाद सिंगुलर नाउन्स चाहिए। सिंगुलर नाउन्स दिए हैं। गलत क्या है? गलत है ये। कैसे गलत है? बिकॉज हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हर एक लड़का और हर एक लड़की रेडी थे। नाउ सी, जो हमने फर्स्ट रूल किया, सी बेटा, एक भी मिनट अपना अटेंशन डाइवर्ट मत करना, अदरवाइज आपका फ्लो टूट जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस में हमने किया हरी एंड राम आर हियर, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े थे। सी, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, तो हमने यहां यूज किया आर। ओके, बट यहां पर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, सी दिस इज ऑल्सो सिंगुलर, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर, बट हम यहां यूज कर रहे हैं वॉज, बिकॉज both the rules are different. Why both the rules are different? As per this rule, if a singular noun is preceded by each or every, तो उसके बाद verb singular लगेगा। हरी एंड राम वाले सेंटेंस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट थे, बट उससे पहले every या each नहीं लगा था, इसलिए वो दो मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। बट यहां पर each और every, so both the rules are different. अगर ईच और एवरी लगा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, बिकॉज, इसको याद कैसे रखेंगे? बिकॉज ईच मीन्स हर एक, एवरी मीन्स हर एक। तो जब हम बात ही एक की कर रहे हैं, दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट एंड दैट मीन्स सिंगुलर वर्ब। यहां पर ईच या एवरी नहीं लगा, दैट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल। नाउ सी, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर। पहले तो ये समझिए इनका मतलब क्या होता है। ना और, नॉर, और या नॉर यूज ही दो चीजों में होता है। ही और शी विल कम, ही और शी विल कम मीन्स व्हाट? ही और शी विल कम मीन्स या तो ही आएगा या शी आएगी। राहुल और रीमा विल कम, तो या तो राहुल आएगा या रीमा आएगी। अब इस सेंटेंस से दो चीजें सीखने वाली हैं। और यूज ही तब होगा जब दो सब्जेक्ट्स हैं,
2 यूनिट्स हैं। Now students, particularly I have taught this too. So whenever two singular subjects are joined by or, not, either or and neither or, they will take a singular verb. They will take a singular verb. अब और not का मतलब क्या, या either or का मतलब क्या, neither nor का मतलब क्या? और means ये नहीं तो वो। राहुल और रीमा, सी अगर मैं सेंटेंस लिखूं, राहुल और रीमा विल कम, टोटल कितने लोग आ रहे हैं बेटा, कितने लोग आएंगे, एक। कैसे पता चल रहा है, और नंबर एंड होगा तो दोनों, रिमेंबर हरी एंड राम आर देयर, तो दो, यहां पर क्या है, और मींस राहुल या रीमा आएंगे, मतलब कोई एक आएगा। ओके, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, आइदर राहुल और रीमा, अब कितने आ रहे हैं, अब भी एक आ रहा है, दैट मींस या तो राहुल या रीमा, दोनों में से कोई एक। ओके, अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, नाइदर राहुल नॉर रीमा, ना तो राहुल ना ही रीमा, मींस दोनों में से एक भी नहीं, इसको याद ही इसे रखना। आइदर और मींस दोनों में से कोई एक, दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस नाइदर नॉर एंड आइदर और, ये याद रखो। आइदर और मींस दोनों में से कोई एक, नाइदर नॉर मींस दोनों में से कोई एक भी नहीं, तो चाहे दोनों में से एक तो भी सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों में से कोई एक भी नहीं तो भी सिंगुलर सब्जेक्ट, that will ultimately take a singular verb. See the sentence, neither he nor I were there, ना तो वो वहां था ना मैं वहां था, दोनों में से कोई एक भी नहीं था। And as you know, as per the subject verb agreement, singular subject always take singular verb। यहाँ verb क्या लगा है, यहाँ verb प्लूरल लगा है, दिस इज ट्रू, तो क्या होना चाहिए, ना तो मैं, ना तो वो वहां था ना मैं वहां था, दोनों में से कोई एक भी नहीं था। एक मींस सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, so this was his correct। So I hope you have understood this rule। Now I move forward to the next one। Now see, when the subjects joined by or या not, उसी से related or या not are of different numbers। See बच्चा, अभी तक हमने जो किया, either राहुल और रीमा, neither राहुल nor रीमा, दोनों में सिंगुलर सब्जेक्ट था, और से पहले भी और के बाद भी, neither के बाद भी, nor से पहले हमने सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की। अब उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लेवल, नो नीड टू फियर, आई एम हियर। तो जब और या नॉट में दोनों तरफ डिफरेंट नंबर्स होंगे, दैट मींस एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल, अब वर्ब कौन सा लगेगा, अभी तक हमने देखा दोनों में से कोई एक, टोटल दो लोग थे, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक भी नहीं, बट यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग हैं। अब कैसे होगा, अब ये होगा सी, the verb, if the subjects joined by or या not are of different numbers, the verb must be plural। now कैसे plural, see, the verb must be plural। अब ये याद रखने वाली बात है, और plural verb हमेशा जो plural subject है उसके पास ही रहेगा। पहले इस चीज को समझो, अभी तक हमारा see, this is singular, this is singular, this is singular, that means singular verb और से जुड़े हैं तो singular verb लग गया। अब अगर लेवल डिफिकल्ट हो रहा है, now pay attention everyone, ये singular, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग और से जुड़ा है। Now this is
plural. Something different from the earlier rule. अभी तक और से दो सिंगुलर नाउन जुड़े थे, अब और से एक तरफ सिंगुलर है, एक तरफ प्लूरल है. Now as per the rule, अगर और से दो नाउन जुड़ रहे हैं, दोनों के नंबर अलग हैं, एक सिंगुलर है तो एक प्लूरल है, तो it will take a plural verb. It will take a plural verb. लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि प्लूरल वर्ब will be next to plural subjects. See, ये सब्जेक्ट प्लूरल, इसके साथ प्लूरल वर्ब, यही तो कर रहे हैं हम. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Your subject must agree with the verb. Your subject must agree with the verb. अब याद कैसे रखना है इसको? सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में रखना है और उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. Now check out this. Neither the assistant masters. Now see, this is plural because of this s. ठीक है? Nor the headmaster. This is singular. Now this is singular verb. अब pay attention. जब भी एग्जाम में कोई सेंटेंस आएगा जिसमें एरर है, they will present you the error in the most correct way. या वो एरर इतना सही लगेगा कि आपको उसमें गलती लगेगी ही नहीं. See, they have given the sentence as per the rule. हमने ये देखा प्लूरल और सिंगुलर, दो सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है. दैट मींस हेडमास्टर वाज प्रेजेंट, उन्होंने करेक्टली लिख दिया, लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई बेटा, जब भी आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट जिनके नंबर्स अलग हैं, उनको और आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ रहे हो, ये याद रखना प्लूरल सब्जेक्ट और या नॉर के बाद आएगा, बिकॉज सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट नियर बाय टू इट. तो यहाँ पर was नहीं चाहिए, because this assistant master's plural subject must be the next one. See, neither the headmaster, अभी singular है, ठीक है, nor the assistant masters, ये plural है, उसके लिए plural verb. That means if either or neither nor are joining two subjects of different numbers, the first subject of the sentence must be singular, the second subject must be the plural, और वो plural subject के बिल्कुल पास में plural verb. I hope this rule is clear to you all. Next we will move forward to the next rule. So students, जैसे हमने अभी किया either or neither nor का रूल, कि दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट एक साथ जुड़े हो और या नॉर से, तो वर्ब क्या होगा? तो if both the subjects are of different numbers, using with or not, the verb must be plural and the plural verb must be the plural subject. Okay, उसी से मिलता जुलता एक और रूल कि अगर दो सब्जेक्ट और या नॉट से जुड़े हैं, तो verb हमेशा उसके पास वाले सब्जेक्ट से रिलेट करता हुआ होना चाहिए. बेटा, आई एम टीचिंग यू रूल इन ईच एंड एवरी मैनर, जिससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए. ना सी, यहाँ पर ही सिंगुलर, आई सिंगुलर, इज सिंगुलर वर्ब यूज. हमने इससे पहले किया था आइदर राहुल और रीमा इज देयर. इज द सेंटेंस करेक्ट? या तो राहुल या रीमा यहाँ है. ना सी, राहुल सिंगुलर, रीमा सिंगुलर, इज सिंगुलर. दिस सेंटेंस इज करेक्ट. वैसे ही आइदर ही सिंगुलर, आई सिंगुलर, इज सिंगुलर. तो गलती कहाँ है? गलती ये है बेटा, आई विल नेवर टेक इज. आई हमेशा एम के साथ यूज होता है. आई एम योर इंग्लिश टीचर. आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. आई एम प्रिपेयरिंग यू ऑल फॉर एनडीए एग्जाम. तो आई एम, आई के साथ एम चाहिए, इज नहीं. ओके, अगर यहाँ आई पहले
ही बाद में होता तो ही इज, लेकिन आई पहले है, आई बाद में है, इसलिए एम। सो तो जो भी वर्ब है सेंटेंस में, दैट वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट नियर बाय। इसी को तो बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल्स हैं वी विल डू हियर with the examples. Now we will move on to the next one. Now see some of the examples जो हमने अभी last 3 rules किए उसका एक recap कर लेते हैं. Some of the example based on either or neither nor. उसके साथ I have added one more thing, not only but also. Not only but also. Not only but also भी use तब होगा when there are 2 units. एक के साथ not only, एक के साथ but also. सिर्फ ये ही नहीं वो भी, not only but also means सिर्फ ये ही नहीं वो भी. Now not only but also can take 2 singular subjects, 2 plural subjects, 1 singular subject and 1 plural subject. But verb कैसा होगा? Let's check. Either I or he is. मैंने जो इससे पहले सेंटेंस किया था ये उसका ऑपोजिट है. Now see, I, he दोनों सिंगुलर. अब इसके साथ am लगेगा कि is लगेगा. वेल अंडरस्टूड है. he के साथ कभी भी am नहीं लगता, is लगता है. So this is right. अगर इसकी जगह यहाँ either he और I होता तो क्या होता? तो यहाँ am लगता. बट यहाँ I और he है इसलिए is. Okay, both the pattern I have shown you. Now next sentence, has और have. He और his friends left already. अब अगर यहाँ मुझे has भी यूज करना है तो has के साथ he. Has he और his friends नहीं. Has he और his friends left already. अब he यहाँ पहले दिया है तो he के साथ has यूज होगा. It will be written as, see like this. ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ has लगता है. मैंने सबसे पहले आपको वही बताया. प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ has. अब यहाँ ही सबसे पहले आ रहा है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट टू हेल्पिंग वर्ब से होता है. अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ has चाहिए. अगर यहाँ his friends पहले होता तो have चाहिए. Okay, now next. Neither she nor I. Now see, neither she nor I is oblique am going to the party. यहाँ पर I. First subject she, next is I. I के साथ क्या लगेगा? I के साथ am. Okay, next. Not only he, but also his friends. अब his friends plural के साथ are. So this is. I hope you have understood these examples. Either or, neither nor, or not only but also. इससे related कोई भी question exam में आएगा, I hope you will be able to do that with the confidence and that also correct. This is my promise to you all. अब either or, neither nor में कभी भी confusion नहीं होगा. Next move over to the next one. Now see, a collective noun. First of all, what do you mean by collective noun? Collective noun means group. Collective noun means which when we are talking about a group. For example, class, team, bouquet. Now अगर मैं बात करूँ students, so they are not collective noun. लेकिन अगर मैं बात करूँ class, the whole class, that means collective noun. अगर मैं बोलूँ bouquet, that means bunch of flowers. Bunch means collective noun. Bouquet of flowers, that means collective noun. जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मींस एक ग्रुप. A bouquet has many flowers. एक बुके में बहुत सारे फूल हैं. बट बात किसकी हो रही है? एक बुके की. A class has many students. एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. बात किसकी हो रही है? एक क्लास की. तो whenever we are talking about collective nouns, they are always considered as a singular subject. And as you all know that singular subject always take a singular verb.
कलेक्टिव नाउन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। ये बेसिक चीज है। अब देखिए, अगर उसके बारे में होल मतलब उसको एक माना जा रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट इफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर नॉट बिहेविंग एज अ सिंगल यूनिट तो उसको अलग अलग माना जाएगा। या जब उस कलेक्टिव नाउन को हम एज अ ग्रुप नहीं ट्रीट कर रहे तो उसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द काउंसिल। नाउ काउंसिल collective noun, that means a group। एक group means singular subject, singular subject के साथ singular verb। The council has chosen the president। ये sentence correct है। इस पे ही एक और sentence। Bouquet is very beautiful। Bouquet means collective noun, means singular subject, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो ये करेक्ट है। क्लियर। नाउ चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस, द मिलिट्री। अब मिलिट्री यहाँ पर मतलब सोल्जर्स। सोल्जर्स सिंगुलर है कि प्लूरल? सोल्जर्स प्लूरल है। ट्रूप्स मींस प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। दैट मींस इफ द कलेक्टिव नाउन is working as one subject, we take it as a singular subject, we supply a singular verb। but अगर जिस भी collective noun को plural की तरह represent किया जा रहा है तो उसके साथ plural verb use होगा because that is considered as a plural subject। now the next one, some nouns which are singular in form but प्लूरल इन मीनिंग। अब ऐसे कौन से नाउन होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं बट प्लूरल होते हैं, प्लूरल दिखते हैं बट सिंगुलर होते हैं? ये तो बहुत कंफ्यूजन है भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। नाउ सी आई हैव रिटन सम वर्ड्स, हर वर्ड के बाद एस लगा है, दैट मींस सारे वर्ड्स प्लूरल है, सारे वर्ड्स प्लूरल हैं। बट हमें तो ये पता है कि अगर बॉय बॉयज, पहले ये समझिए, बॉय बॉयज, बॉयज सिंगुलर बॉयज प्लूरल। दैट मींस अगर हमने यहाँ एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया। ऐसा होता है हर एक वर्ड जिसमें एस लगा है वो प्लूरल फॉर्म नहीं होता नाउन का। पहली बात तो प्लूरल बनते कैसे? प्लूरल सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बनते, बाकी ना वर्ब एडजेक्टिव किसी भी। नाउन और प्रोनाउन के प्लूरल फॉर्म बनते हैं। नाउ बॉय इज अ कॉमन नाउन, उसका हमने प्लूरल एस लगा के बता दिया। नाउ दिस इज अ सेगमेंट ऑफ कंफ्यूजिंग नाउन्स कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो एस के साथ तो हैं, जो दिख तो प्लूरल रहे हैं बट कई बार वो प्लूरल नहीं होते। लेकिन उसके कॉन्ट्रारी कई चीजें ऐसी हैं जो सिंगल है बट फिर भी हम उसको प्लूरल मानते हैं। ये कैसा कंफ्यूजन है? लेट्स क्लियर। नाउ फिजिक्स, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, फिजिक्स की स्पेलिंग में एस लगा है तो क्या वो प्लूरल है? नो, वो सिंगुलर है। हम इसको यूज कैसे करेंगे? फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट एस से उसकी स्पेलिंग में बाय डिफॉल्ट एडेड है, वो प्लूरल नहीं है। वैसे ही इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी मैटर्स। तो इकोनॉमिक्स आर नहीं, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट। ये तो क्लियर हुआ ना। न्यूज, न्यूज में भी एस लगा है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो न्यूज में जब एस लगा है वो उसको प्लूरल नहीं बना रहा। इन वर्ड्स में एस एंडिंग में एज अ डिफॉल्ट उसकी स्पेलिंग का पार्ट है। तो डोंट टेक दीज वर्ड्स एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, नाउ सी, अब अगर यहां लिखा है हमने मैथमेटिक्स, जैसे हमने अभी किया इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, रोबोटिक्स, ये सब सब्जेक्ट इनके नाम में ही एस एडेड है तो
तो ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। तो यहाँ आर नहीं, यहाँ इज चाहिए। सी नाउ टॉकिंग अबाउट दीज वर्ड्स, पे अटेंशन। अब ये शूज, इसमें भी एस लगा है, सीजर्स, टॉन्ग्स। अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची। कितनी कैंची? एक कैंची भी सीजर्स, एक कैंची भी सीजर्स। हम सीजर नहीं बोलते, एक कैंची को भी सीजर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? Whenever something is assembled with two parts, दो पार्ट्स मिला के एक चीज मिल रही है, तो उसके वर्ड में, उसके नाम में एस लग जाता है, उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, बिकॉज वो दो चीजों को मिला के एक बनी है। अब सीजर्स, सीजर्स आर मेड अप ऑफ टू ब्लेड्स, दो ब्लेड को मिला के वो एक सीजर बनी है। अब एक ब्लेड अगर टूट गई तो क्या आप एक ब्लेड से काट सकते हो? सेम वे शूज, अगर आपका एक जूता खो गया तो क्या आप एक जूता पहन के चले जाओगे कहीं? नो, वो जूता किसी काम में आएगा? टॉन्ग्स, टॉन्ग्स मींस संसी या चिमटा। अगर संसी का एक पार्ट टूट गया तो क्या आप दूसरे पार्ट से उसको काम कर सकते हो? नो। वैसे ही सॉक्स, shades. Now what do you mean by this word shades? Shades means goggles, a new word for goggles. जब भी ये nouns यूज होंगे, इन सब के साथ plural verb यूज होता है। For example, my shoes are missing. चाहे एक भी जूता खोया हो, फिर भी आप बोलोगे मेरे जूते नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि वो एक जूता पहन के थोड़ी निकल जाओगे आप, पहन के तो दोनों ही जाओगे। तो whenever these words are used, shoes, socks, trousers, see, my trousers are, shoes are, trousers means pants, चाहे एक पैंट है फिर भी उसको प्लूरल सब्जेक्ट लिया जाएगा, बिकॉज वो दो लेग्स को जॉइन करके एक पैंट है। तो whenever these nouns are used, they are taking plural verb with them because we are considering them as a plural subject. Okay, now the next one. Word joined to a singular subject by, with, together with, in addition to or as well as. जब भी किसी भी सेंटेंस में as well as, in addition to, with, in, together ये वर्ड्स जॉइन हो रहे हैं, ये वर्ड्स ये बताते हैं they are parenthetical. Parenthetical means they are giving an additional information about the main part. About the main part. That means जब भी ये words use होंगे, ये words main subject की ही information दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बता रहे, वो अलग से कुछ नहीं बता रहे, वो main subject की ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बात किसकी हो रही है? मेन सब्जेक्ट। तो जब मेन सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो चाहे वो मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमको मेन सब्जेक्ट को ही देखना है। हमें इन एडिशन टू, टुगेदर विद के बाद वाले सब्जेक्ट के नंबर से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल द चीफ, नाउ सी द चीफ, ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, with all his men, plural। हमने इससे पहले ये रूल किया था कि अगर दो सब्जेक्ट अलग अलग नंबर के जुड़े हो तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लेना, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब लगाना। ये हमने किया था आइदर और नाइदर नॉट। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पॉटिंग द एरर के सेंटेंस में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंस में, देन प्रेजेंट योर सेंटेंस इन द मोस्ट करेक्ट मैनर। कि आप रूल्स लगाते रह जाओ, आपको गलती ना दिखे, बट हमको ऐसा नहीं करना, हमको द बेस्ट अप्रोच लगाना है, द प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है। एज आई ऑलवेज से, नो नीड टू फियर बिकॉज़ नीतू मैम इज हियर। नाउ सी, यहाँ पर क्या लिखा है? विद। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी विद लग रहा है, विद के बाद कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मेन सब्जेक्ट लिखना है। नाउ सी, with हो, in addition to हो, together with
ये वर्ड सेंटेंस में जब भी आ रहे हैं इसके बाद वाले सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। आप मेन सब्जेक्ट देखो, दिस इज द मेन सब्जेक्ट। इसके नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर ये क्या है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउ सी, pay attention. The teacher, in addition to all his students, in addition to all his students, ये सिंगुलर ये प्लूरल। वर्ब क्या लगेगा जल्दी से बताओ। इन एडिशन टू जब भी लग रहा है उसके बाद वाले सब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मेन सब्जेक्ट देखना है। मेन सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज प्रेजेंट। Clear? Clear everyone? Okay. Now we move forward to the next one. Now pay attention. Many. हमने बचपन से many सीखा है। Many means बहुत सारे। Many boys are playing in the garden. तो many means बहुत सारे। Many का मतलब ही होता है plural, means बहुत सारे। तो जब मैंने बोला many boys are playing, तो pay attention, जब भी many लगेगा, many means बहुत सारे। many के बाद हमेशा और हमेशा plural नाउन लगेगा। plural नाउन के लिए plural वर्ब, plural नाउन के लिए plural वर्ब। तो many boys are playing। now अब एक डिफरेंस समझ लो बेटा, आपको many का मतलब पता है। now many means plural, many means plural। एग्जाम में many में क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन किस पे आएंगे बेटा? क्वेश्चन आएंगे a many, a great many, many, a many, a great many। इन तीनों का मतलब ही एक होता है, इन तीनों का मतलब सेम है, चाहे वो a many हो चाहे वो great many हो। ना सीखो many, a many, a great many, all the three means same, all the three means plural। इनके बाद हमेशा हमेशा plural noun। many boys are playing, a many boys are playing, a great many boys are playing। तीनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। many हमें पता है मींस प्लूरल, लेकिन many के लिए अगर a many दे दिया जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। a many means many, a great many means many, many, a many, great many। याद रखने की ट्रिक क्या है? याद रखने की ट्रिक ये है, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी तीनों में ये many। so alright students, as I was telling you about the trick is many रहे, a many रहे, a great many रहे, तीनों का मीनिंग सेम है, मींस मेनी, मींस बहुत सारे। सेकंड थिंग टू बी रिमेंबर्ड, मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, दैट मींस प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। एंड एज यू ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यू नो प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। दैट मींस अगर मैं बोलूं many boys are playing, many boys are playing, a great many boys are playing, a great many boys are playing, a many boys are playing। तो इनसे कंफ्यूज होना ही नहीं। अब बात आती है इसका डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आता कैसे है, लेट्स चेक इट आउट। अगर सी many plus plural noun ये हमने कर लिया, many students are absent today, many students रहे, a many रहे, a great many रहे, a big many रहे, सबका मीनिंग सेम। याद ये रखना है many के बाद plural noun आएगा। ओके, ना अगर many के बाद a आ जाए या many के बाद an आ जाए, many के बाद
ए, अभी तक हमने किया आ मैनी, अब हम बात कर रहे हैं मैनी आ, दोनों में डिफरेंस है, ये प्लूरल ये सिंगुलर। कैसे? यहाँ मैनी के बाद ए आ रहा है, ए मतलब एक के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मैनी ए रहे या मैनी एंड रहे, दोनों में फर्क क्या है? ए लगेगा कॉन्सोनेंट के पहले, एंड लगेगा वोवेल के पहले, दोनों का मतलब ए। तो मैनी आ मींस सिंगुलर, आ मैनी मींस प्लूरल। नाउ सी, मैनी आ या मैनी एंड, मैनी आ या मैनी एंड, इनके बाद लगने वाला सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है, एज यू ऑल नो subject must agree with the verb, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ही लेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सी, many politicians, check out the sentence, many के बाद politician चाहिए कि politicians चाहिए? many, are great many, तीनों में से कुछ भी हो। I have taught you, many के बाद politicians चाहिए, बहुत सारे politicians, many politicians। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेगा? प्लूरल वर्ब, इसके साथ हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो many politicians have promised to make changes। अब इसका ऑपोजिट, many के बाद a है, सी, many के बाद a है, many means सिंगुलर, a के बाद हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, तो दिस विल बिकम many a politician has promised। Got the difference? I am repeating it once again, many भी रहे, many रहे, great many रहे, तीनों का मीनिंग सेम, many के बाद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ऑन द कॉन्ट्ररी, many a या many and, इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। चेक आउट दिस, many and, अबे many and means singular, employee की employees, of this company, इस क्रिया बात employee की हो रही है, employee कितना है? एक के लिए is, तो many an employee of this company is supposed to be transferred to some other company। So I hope this rule is clear to you. So we have done 10 rules today, and I hope you all have understood all the 10 rules in the detailed manner. But still, if you have any of the doubt in any of the rule, in any of the thing, just feel free to ask your doubt. I am here to clear all your doubts. But study well, work hard, and just give your feedback, because your feedback is a booster for us. Your comments, your feedback is the booster for us. And then again, I'll meet you in the next video. Till then, stay tuned.